Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders, where mentorship is a priority. I am your host, Elisa Nakvi, and today we have a powerhouse of energy among us. She is an IB graduate, and apart from that, instead of opting towards a corporate career, she came towards teaching, and that remained her profession and her passion till date. She is a YouTuber as well and now has formed a community of around 1400 people with the name of Rapid Revisions with Shayan. Yes, this is our very own talented Miss Shayan Shakur. Thank you, Aliza, for such a nice introduction. Thank you for being here. It's just a pleasure being here. Well, we are glad. And let's just get straight into it. Sure. All right, if I was to ask you about a word that describes you entirely, and it could be something that you practice, something that you value in your life, just a word that describes you entirely. So, what I think about myself, just in a word, would be that I am resilient. Okay. So, it's because the challenges that I've faced in my life, I've always learned from them. So, that's what I expect out of my students as well. That whatever difficulty it is, just see what are you learning from this. That's it. And I think that's quite a different approach from other people that we've had on the podcast. Like, this is the first time someone said that. So, kudos. I really like how this is going. All right, coming towards a little bit about your education. And you opted for marketing and finance Yeah. in IPA. So, there are so many things about your personality that I want to get into. You are currently a YouTuber, and as I've been told, you had this dream for a very long time. Yeah. And there are certain times where we do certain things to support that big goal that we've had. So, in order to become that YouTuber, was going to IPA a small step towards achieving that goal? Or was it something of a more practical approach, or something that you should do, or something you're expected to do? So while I was in IBA, I always thought to become a teacher. So since my A levels, I just loved accounting. And during my time in IBA, so I used to teach finance to my friends over there, economics to my friends over there at IBA, accounting to my friends. So at that time, I just thought of being a teacher in Okay. future because I did not want to end up in the corporate world because when I graduated from IBA, I used to talk to my friends about their life at their jobs. So they were into corporate world. And then I used to think it's not for me. The 9 to 5 job is not for me. I think I was a bit too lazy for it. 9 to 5 was too many hours. But at that time, I thought, okay, teaching is something that I really want to do. I really like talking to these young students, and it just keeps me. It just keeps me on my toes. Like I'm all the time teaching, talking to young students. Um, Knowing about them is also a very it's a different experience. So then I just thought of being a teacher, so I used to find jobs that was related to commerce subjects. So I really wanted to be an accounting teacher, but before that I just thought, okay, I just want any of these three: business studies, economics, or accounting, but I'll just get into it. So there was this, my school offered me a job at that time, and it was economics O levels. So I started with that, and later I joined Reflections for accounting O levels. And then, there was this on social media, I used to watch a lot of videos of teachers. So it was basically that content was also relevant for me. So it used to come in like, जब हम वो रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे नज़र आ जाता था कि ओ ये एक टीचर हैं, ये इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं उसमें. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ओ आई विश मैं ऐसा कुछ कर सकती. Okay. लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो में अपीयर कैसे होना है. मतलब हाउ वुड आई एक्चुअली डू दिस. मुझे कुछ भी नहीं आता था ये सब, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे ये करना है एक दिन. एंड देन लेटर आई यूज टू ऑल्सो टीच एट अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जैसे ट्यूशन सेंटर्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे भी लोग इस तरह की चीज़ें करते थे कि
दे वहाँ पे उनके पास स्टूडियो लाइट्स और वो सब, एंड देन वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कर रहे होते थे, तो मैं देख के काफ़ी इंस्पायर होती थी। फिर मैंने बहुत सारे, लाइक बेसिकली आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, सो आई जस्ट केप्ट दैट क्यूरियोसिटी इन मी कि मुझे ये करना है। तो हालांकि मुझे नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे डर लगता था कि अच्छा मैं यूट्यूब पे जब वीडियो पे आऊँगी तो मेरा जो है वो अब इस तरह से निकलेगा वीडियो के अंदर, एंड देन मुझे कौन सुनेगा। मुझे इस तरह की भी फीलिंग आती थी कि ओ हु वुड वांट टू वॉच माय वीडियोस, लाइक हु वुड वांट टू स्टडी फ्रॉम माय वीडियोस। बट देन लेटर आई स्टार्टेड विद बिट बाय बिट। जैसे शुरू में मैंने एक वीडियो बनाई तो मैं सबसे पूछा करती थी कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, मतलब मेरे पास दिमाग में कोई फॉर्मेट नहीं है, मैं किस तरह से, मतलब व्हाट शुड आई मेक फर्स्ट। बट देन समवन टोल्ड मी दैट यू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक जो आपके स्टूडेंट्स को स्कूल में मुश्किल लगता है। तो समथिंग दैट योर स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट इन योर स्कूल, उस टॉपिक को पकड़ें और उस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने उस पर वीडियो बनाई, फिर स्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया। तो द बेसिकली द मोटिवेशन इट केम फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल, कि स्टूडेंट्स कमेंट करते थे मिस दिस इज़ रियली हेल्पफुल, दिस इज़ रियली हेल्पफुल, तो मैं और वीडियोस बनाती थी। एंड देन ऑब्वियसली आई एम इन द जर्नी नाउ, सो आई स्टिल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस, एंड इन फैक्ट राइट नाउ ऑल्सो मेरे दिमाग में कुछ वीडियोस हैं कि मुझे ये वीडियोस बनानी है अपने स्टूडेंट्स के लिए। So that's how I ended up being a YouTuber as well as a teacher. Wonderful. It's a nice thing to add to your name, You're a teacher and a YouTuber. And a Pretty YouTuber. fancy. Yes, that's very fancy. So you have exposure all across the globe. You can teach students anywhere from YouTube, right? So any particular student experience that you've had, or anything in, like, whether it's physically or online, any experience that you felt you've made a significant change in somebody's life? Significant change. I basically helped them through YouTube इनके एग्ज़ाम में। तो जैसे मुझे स्टूडेंट्स इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि मिस आई एम सो ग्रेटफुल टू कम अक्रॉस योर पेज because of your resources, the resources that you've made, I was able to take my exam very confidently. तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी मुझे काफ़ी मूव करती हैं और वीडियोस बनाने के लिए। बट लाइक देन देयर वाज अ फ्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और कहा था कि मिस एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम आपकी वीडियोस देख रहे थे और एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। Wow. And we are so grateful कि आपने like there was no fee in this, but like we could study for our exam. So that's something that is the impact that YouTube basically creates, कि आपके जो students होते हैं वो आप उनको जानते भी नहीं हैं, मतलब वो all over the world they are just watching your YouTube videos, and then they show so much of love for you. Definitely. कि it just keeps motivating you. All right, so you're also related to the finance field and you teach in those subjects as well. So do you think that CA or ACCA is an appropriate field for O and A level students? What I tell my students is कि economics में एक concept है कि there is this chapter on labor markets, और उसमें ये पढ़ाते हैं हम कि जितना ज़्यादा कोई प्रोफेशन में सप्लाई होती है ना, उतनी ज़्यादा पे जो होती है वो कम हो जाती है। तो इट्स लाइक इफ़ देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग, देन लाइक उनको जो है वो द पे दैट दे आर ऑफर्ड इज़ प्रिटी लो। फॉर ACCA and CA there are a very few students who end up completing ACCA and CA, so that makes their उनकी जो डिमांड होती है मार्केट में वो अलग ही होती है। तो मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि रेयर स्किल्स या रेयर ऐसे करियर्स में जाओ जो रेयर हों, जो आपके जैसे बहुत सारे ना हों। अगर आप ACCA या CA भी बन रहे हैं उसके बाद भी फोकस ऑन मोर स्किल्स, लाइक डूइंग BBA वॉज बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है। मतलब हम क्या डिफरेंट हैं उन बहुत सारे बच्चों से जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने BBA किया हुआ है। हम इतने डिफरेंट तो नहीं हैं, लेकिन फिर हम अपने स्किल्स पे भी फोकस कर सकते हैं, कोई नई स्किल्स सीख सकते हैं ओवर टाइम, सो दैट वी बिकम रेयर। सो दैट्स व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स, दैट फोकस ऑन रेयर स्किल्स। सो ACCA and CA इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज। लाइक CA बनना CA कंप्लीट करना इज़ नॉट समथिंग दैट एवरीबडी कैन डू, एंड पूरे पाकिस्तान में द नंबर ऑफ CAs आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नंबर, बट बहुत कम है।
पूरे पाकिस्तान में. Okay. And because you have a global platform as well, and ACCA is something which is all over the world, right? It's all over the world, yeah. So that is a route that students can opt for, and I feel like ACCA का जो pattern है, they're already familiar with that pattern, right? So it's not going to be as difficult for OA level students to adapt to that pattern. Yeah, because the thing is that O levels, even if you start accounting in your O levels and then in A levels, तो ACC और CA में काफ़ी आसानी हो जाती है. क्योंकि जब मैं BBA भी कर रही थी तो मैं CA वालों के काफ़ी पेपर्स देखा करती थी, बिकॉज मेरा भाई CA में था Okay. at that time. तो मैं उसका ना वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो सब सॉल्व किया करती थी, और मुझे वो काफ़ी आसान लगता था बिकॉज मेरे पास A levels का बैकग्राउंड था अकाउंटिंग का. Yeah. सो दैट बेसिकली मेक्स अ गुड पाथवे कि आपने O levels में भी किया, A levels में भी किया, एंड देन यू नो इन CA व्हेन यू कम इन CA और ACCA तो रिलेटिवली आपके पास टाइम कम होता है एग्ज़ाम से पहले. तो जैसे आई थिंक CA का अराउंड 6 to 8 months होता है स्टूडेंट्स के पास एक सब्जेक्ट के लिए, डिपेंड्स ऑन दैट. हाँ, 6 months होते हैं. तो जैसे अगर आपने A levels में किया हुआ है तो इट्स जस्ट मेक्स योर लाइफ ईजी इन CA. Okay, wonderful. And did you opt for different career paths as well? Because since you are an educator, so I'm sure that the responsibility of career counseling also lies upon you. Yes, So- it does in school. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करने की कोशिश करें, लाइक स्टूडेंट्स को हेल्प करें, लाइक जितना हम हेल्प कर सकते हैं. बट इट्स लाइक दैट कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत दफ़ा दे वांट टू स्विच टू कॉमर्स इन A levels एंड देन दे कम अप टू अस एंड देन दे से कि मिस मुझे A levels में स्विच करना है, एंड देन व्हाट सब्जेक्ट्स शुड आई टेक, एंड देन व्हाट आर द फ्यूचर करियर ऑप्शंस फॉर दैट. मतलब यूनिवर्सिटी में मेरे क्या क्या करियर पाथ्स खुलेंगे इससे. तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग हम करते हैं. एंड देन यू नो द करियर काउंसलिंग थिंग इज़ दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट प्रोफेशनली ऑल्सो. तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके पास भी जाते हैं बहुत दफ़ा, लेकिन टीचर्स ऑफ कोर्स आर देयर फर्स्ट, like Yeah, their first definitely. place. Yeah. All right. Coming towards O and A levels, what do you think are some of the most challenging aspects of it that students go through, and you people are trying to target them, trying to overcome them? The challenging aspects about O levels and A levels. Yes. That students face. Yes. Okay, so what the students face normally is that बहुत दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है ये कोर्स. Okay. जैसे मैंने O levels में भी बच्चों को देखा है, they feel very overwhelmed towards the exam. They think it's very difficult. And you know sometimes also one more thing कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम ऐसी है ना कि जैसे बच्चों के मार्क्स से उनका मूड Definitely. बहुत रिलेटेड होता है. अब जैसे आई टेल यू लाइक क्लास के एग्जांपल्स हैं कि बच्चे जैसे अगर किसी कोई बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है लेकिन उसके कोई मार्क्स अच्छे नहीं हैं, लेट्स से उसके मार्क्स लेट्स से 20 के टेस्ट में आउट ऑफ 20 में 10 से बिलो आ गए उसके, तो दैट डजंट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट. बट Yeah. उस वक्त वो स्टूडेंट इस तरह से डरा हुआ होता है कि मतलब जैसे दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, और अगर आप इस बात को अभी मतलब यू वुडंट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो 14-15 ईयर ओल्ड जो है ना, हम अब उससे निकल गए हैं बाहर. हम भी जब थे वहाँ पे तब हम भी ऐसे ही थे कि अच्छा 4 out of 20 आ गए तो मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आ सकता, या फिर या फिर मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन मेरे इतने से मार्क्स आए. तो ये जो चीज़ है ना, ये बच्चे काफ़ी ये वाली चीज़ जो है ना वो बहुत फेस करते हैं. ऑल्सो 14-15 ईयर ओल्ड में मैंने देखा है वो बहुत जल्दी जजमेंट बना लेते हैं कोई सब्जेक्ट के बारे में. Okay. जैसे ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है, मैथ के बारे में कहेंगे कि ओ मिस ये तो बहुत मुश्किल है, या फिर अकाउंटिंग के बारे में कहेंगे मिस ये तो बहुत मुश्किल है. तो वो जो चीज़ होती है ना कि जल्दी हार मान जाना, वो थोड़ा सा 14-15 ईयर ओल्ड्स बिकॉज वो थोड़ा सा उनमें है. अब मुझे याद पड़ता है कि मैं भी इस तरह की थी कि मैं जजमेंट बना लेती थी, ओ ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है. बट दैट्स द थिंग, दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट जजमेंट ऑफ देयर्स कि मुझे ये आता ही नहीं है. उससे अच्छा ये ना कहें कि ओके आई विल पुट एफर्ट फॉर दिस, इवन इफ आई डिड नॉट गेट अ वेरी गुड ग्रेड, इट्स ओके, आई विल वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें चैलेंज फेस होता है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं कि ये सिर्फ एक टेस्ट है. और अच्छा, हम आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं दे सकते क्योंकि आपने उस तरह का लिखा नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप डीमोटिवेट हो जाएं इसलिए और आप हार्ड वर्क करना छोड़ दें.
बिकॉज इट्स इन द एंड द हार्ड वर्क. एंड वन मोर थिंग कि एक चैलेंज होता है कि अच्छा सबकी एबिलिटी भी डिफरेंट होती है एज अ स्टूडेंट. कुछ बच्चे होते हैं बहुत फास्ट पिक करते हैं, कुछ बच्चे स्लो पिक करते हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली एफर्ट डाल के भी दे कैन एंड अप विद एन ए स्टार. Yeah. बट सम स्टूडेंट्स दे डोंट नीड टू मेक एन एफर्ट, दे आर जस्ट ब्लेस्ड अल्लाह ताला की तरफ से. तो वो फिर होता है ना कि वो बैलेंस करना पड़ता है आपको क्लास में कि अच्छा ये बच्चा इतना एफर्ट डाल रहा है, लेकिन मतलब उसके अभी इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे, लेकिन इन द एंड वो ही और शी विल ऑल्सो एंड अप विद अ गुड ग्रेड. Yeah. So that's the thing. Okay, interesting. Coming towards you and your personality, I want you to highlight one weakness and one strength that you possess. Putting the weakness first so that we can glorify the strength a little. Okay, weakness, I would say that sometimes when my goals are not achieved, I feel a bit anxious about it. Okay. But then, अच्छा अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मुझे एक वीडियो बनानी है, तो वो मेरे दिमाग में रहेगा जब तक मैं बना नहीं लूँगी ना तब तक वो मुझे सुकून नहीं आएगा. वो बस. और अब सिंस मैं 2 साल से ये कर रही हूँ तो मैं 2 साल से इससे भी गुजर रही हूँ. लाइक अच्छा मुझे ये वीडियो बनानी है, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे ये वीडियो बनानी है, मुझे मतलब एक दफ़ा बनाई नहीं किया. एग्जैक्टली प्रिपेयर नहीं किया, या फिर एक दफ़ा बना ली तो कभी कभी ये हो जाता है कि ग्लिच हो जाता है और वो वीडियो एडिटिंग में इतनी अच्छी नहीं आ रही होती, तो फिर दोबारा बनाते हैं. तो वो एक होती है ना उसकी, वो एक थोड़ा सा मैं एंक्शस हो जाती हूँ उसकी वजह से. बट देन द गुड पार्ट अबाउट इट इज़ दैट आई एंड अप मेकिंग दैट वीडियो. जब तक मैं वो बनाती नहीं हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मी एज अ पर्सन इज़ दैट आई एम अ वेरी क्विक लर्नर. Okay. तो ये जो आप वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई वॉज नॉट क्लोज टू इट एट ऑल. मुझे बिल्कुल नहीं आती थी वीडियो एडिटिंग, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन जैसे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिखाया. अच्छा और ऑल्सो यूट्यूब पे अपीयर कैसे होना है, आई वुड आस्क माई फ्रेंड्स कि अच्छा ये वीडियो कैसी बनी है, या आप कमेंट करके बताएं इसको कैसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एन इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड दैट ब्रांडिंग एंड दैट पूरा बिजनेस का लाइक लुक होता है एक. तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाई. तो शुरू में शी यूज़ टू डिज़ाइन पोस्ट फॉर मी, बट उसका डिज़ाइन किए हुए को देख के आई यूज़ टू कॉपी एंड देन आई यूज़ टू यूज़ दैट कैनवा में. मैं बस लग गई थी उसमें और बार बार और बहुत सारे पोस्ट बनाती थी जानबूझ के ताकि मैं सीख जाऊँ. तो इन द एंड वो मैं सीख गई. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर कोई चीज़ सिखाई जाए तो मैं सीख लेती हूँ. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट मी, क्योंकि मैं भी फिर इन द एंड देखती हूँ ना कि मैंने कितनी स्किल्स सीख ली हैं अभी तक. एंड देन आई फील प्राउड अबाउट इट कि मतलब मैंने इतना कुछ अचीव किया है. Definitely you should. And we are very proud of you as well. थैंक यू. All right. Now coming towards a question which I feel is very personal to, I'm sure everybody who's watching. It's very personal to me and it could be very relatable to you as well. So what advice do you give to those students who have a lot of dreams? They have a lot of ambitions. They want to do so much in their lives, but they don't know which direction to take. They don't know what's that first step. They don't know whether or not they feel stuck in life right now. And just पता है कि ये specific चीज़ करनी है, but how to get there? What to do? Like how does that process work? Yeah, ये जो आपका सवाल है इसमें I see myself, because a few years back I remember मेरी स्कूल की जो कोऑर्डिनेटर है उनको मैंने कहा था मुझे फेमस बनना है. उनको कहा था मुझे फेमस बनना है. That is as raw as it could get. मुझे फेमस बनना है. मैंने उनको ये कहा था. उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फेमस आप you do what you're doing, you keep doing what you're doing and then you will one day become famous. उन्होंने मुझे कहा था. तब मैं यूट्यूबर नहीं थी. तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा था. सो ये जो ये होता है ना कि यू हैव सम ड्रीम बट यू फील स्टक, यू डोंट हैव अ डायरेक्शन कि आपको क्या करना है कि वो ड्रीम को अचीव करने के लिए. तो द थिंग अबाउट दिस जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखा है, यू कीप टेलिंग पीपल अबाउट इट कि like someone or the other will help you achieve that dream, because it's like a collaborative effort. आपके दोस्त आपको कितनी दफ़ा हेल्प कर रहे होते हैं कोई चीज़ अचीव करने के लिए. तो like you should, like if you have that dream, you just talk about it.
with people. Like even if you sound कि जैसे मैंने कह दिया था ना उसमें मुझे फेमस बनना है, तो मैं कोई बिल्कुल भी फेमस नहीं थी तब. मतलब आपने उस पर कोई फिल्टर लगाया ही नहीं, इट्स कंप्लीटली रॉ, बस ये बिल्कुल बनना कह है. दिया फेमस बनना है. हाँ, लेकिन हाँ मुझे मैंने ये चीज़ सीखी है कि फेमस बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. लेजी हो के आप फेमस नहीं बन सकते. तो आपको वो वाला हार्ड वर्क होता है ना कि कभी कभी नींद गंवानी पड़ती है. बिल्कुल. हाँ, कभी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क बना के बन करके, एंड देन यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट. ओ एम आई रियली फेमस. मतलब जैसे अब स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं तो मैं इसके बारे में नहीं सोचती हूँ कि अच्छा हाँ मैं फेमस हो गई. Because you're so caught up in those steps to reach there. या तो इसलिए फेमस बनने के लिए ना ये वही बात है, मैंने अब अपने लिए यही सोचा कि मैं लेजी नहीं हो सकती अगर मुझे फेमस बनना है तो बस that's it. Okay. Well, you have been a breath of fresh air, Ms. Shayan. This was a lovely conversation, and we would just like to end it on a note to give an advice to all of your students. It doesn't matter where they are in life. It doesn't matter if they're done with their academic careers, going towards professional life. Just a word of advice for everybody out there. So I would tell my students कि कोई भी like anyone who is in academic या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में है या फिर जॉब में है, करियर में है, वो उनको जो है ना वो मेरी एडवाइस यही होगी कि whatever difficult situations that you are facing in life, try to see what you're learning from them. क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं आपकी लाइफ में कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन यू एंड अप लर्निंग समथिंग फ्रॉम दो सिचुएशंस. तो कोई भी लाइक स्टूडेंट हो 14-15 ईयर ओल्ड्स हों या फिर ए लेवल्स वाले हों या फिर BBA के दौरान भी या फिर यूनिवर्सिटी एनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ऑल ऑफ देम विल हैव सम सिचुएशंस कि कोई भी चीज़ होगी लाइफ में जो फेस कर रहे होंगे जिससे वो दे विल एंड अप लर्निंग समथिंग न्यू, something great and something that they can be proud about. Also, one more thing I always tell my students कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसके साथ आपके पैशन से रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास स्मॉल सेटअप होना चाहिए. जैसे छोटा सा बिजनेस हो, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ साथ साथ मैं यूट्यूब चला रही हूँ एंड इंस्टाग्राम पेज, बट देन डू इट साइड बाय साइड. यू शुड हैव सम साइड हसल बिकॉज जैसे हम पाकिस्तानी इकोनॉमी में भी एवरीबडी आई से दिस टू एवरीवन कि बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस भी ऐसी हैं कि यू नीड टू वर्क हार्डर. लाइक ओनली अ जॉब विल नॉट गिव यू द फाइनेंसेस जो आपको चाहिए. तो इसलिए आपके पास एक साइड हसल होनी चाहिए, या फिर अगर आप आर्टिस्ट भी हैं तो वो भी आप दुनिया को बताएं कि मैं आई डू दिस वर्क. लाइक यू नीड टू शो योर वर्क आउट देयर सो दैट पीपल नो अबाउट इट. एंड वो जो है ना, देयर इज दिस बुक ऑल्सो, शो योर वर्क. In this today's, it's by Austin Kleon, and in today's world, it's like if the internet is out there, you can just tell everyone about your work, चाहे आप कुछ भी करते हो. Definitely. So students को भी मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी आपका पैशन हो उसके related you should have a small setup or a business. तो you'll feel proud about it and you will feel great. क्योंकि it's just not the job that will make you feel great. बिल्कुल, absolutely. I completely agree with you. Thank you so much, Ms. Shayan. This You're has welcome. been a wonderful conversation, Same I must here, say. same here. Thank you so much for your time and everything that you've spoken. It is clear that you've spoken from your heart. Thank you so much. Alright guys, that is all for today. The theme of this episode definitely has to be loud, be spontaneous, be all over the place, be yourself. This is Aliza Naqvi signing off.